السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس ناول من کی ایپیسوڈ نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ضیاء نے ولیمے کے اگلے دن سے ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں ان کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ مناہل کا ہی تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے وغیرہ سب نکال کر الارم سیٹ کر کے کمرے سے نکل جاتی اور رات کو اس وقت کمرے میں گھستے جس وقت وہ سو چکا ہوتا۔ اس پورے ہفتے میں اس کا قیام صوفے پر تھا۔ ولیمے کی رات کے بعد سے وہ اسے چھپی چھپی پھر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا، اس کی اتنے قریب کیسے سو گئی تھی۔ جب بھی اپنے بالوں میں اس کا لمس محسوس کرتی تو دل الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگتا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹک دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے اتوا کے کمرے میں تھی۔ ضیاء ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا، جس پر کافی دوستوں کی وشز آئی ہوئی تھی۔ کچھ میسیجز موہت کے بھی تھے۔ نفرت اس کا نام اور ڈی پی دیکھ کے بلاک کرنے سے پہلے اس کے میسیجز کھولیے، جن میں کچھ شادی کے دن کے کیے گئے میسیجز تھے۔ ماہی، آخری بار بات کر لو۔ منہل کی مجھے اتنی بڑی سزا دو گی، بات کر لو پلیز۔ ماہی، میں لندن جا رہا ہوں۔ یہ اس کے لاسٹ پیپر والے دن کا میسیج تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں، مگر تم اب بھی نہ پتہ نہیں کیا وہ شخص اتنا سحر انگیز ہے۔ اس کی مہندی کے دن کا کیا گیا میسیج تھا۔ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا تھا ماہی، مگر شاید میری محبت میں اتنی لگن نہ تھی کہ تم تک پہنچ پاتا، مگر میری دعا ہے تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے۔ یہ وہ آخری میسیج تھا جو برات کی رات کو کیا گیا تھا۔ منہل کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ موبائل سائیڈ میں ڈال کر سر تکیے میں دے دیا۔ کاش موہت تم اپنی ریجیکشن کا اتنا بھیانک بدلہ نہ لیتی مجھ سے۔ کوئی کیسے اتنا گر سکتا ہے کہ دوسرے کی عزت و آبرو پیروں تلے رون دے۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ سوچے کہاں سے کہاں نکل گئی، کتنا بدل گئی تھی اس کی زندگی۔ انہی خیالوں میں گم، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی جو مغرب کے اذانوں پر کھلی تھی۔ بال سمیٹ کر جوڑا باندھا، یلو کاٹن کے قمری شلوار پر شفون کا دوپٹہ سائیڈ میں بیڈ پر پڑا تھا۔ مہندی ہلکی ہلکی ہٹنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں گولڈ کی رنگ اور بریسلٹ اور دوسرے ہاتھ میں نازک گولڈ کی چوڑیاں اس کے گداز ہاتھوں پر بہت جچتی تھیں، جس کا ریتا اور ہینا نے برملا اظہار بھی کیا تھا۔ وہ جیولری نہیں پہنتی تھی، مگر ان لوگوں نے ٹوک کر اسے عادت پڑوائی تھی۔ ناک میں چھوٹی سی ہیرے کی لونگ اور گلے میں باریک سی چین اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ آپ ہی نیچے فہد بھائی آئے ہوئے ہیں، تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وضو کر کے لوٹی تو دعا پکارتی تائی امی کا پیغام لے آئی۔ اچھا، آ رہی ہوں، اس نے نماز کے لیے دوپٹہ باندھتے ہوئے کہا۔ اسے ان کی اور ماما کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، جو ہر وقت اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتی تھی۔ نماز پڑھ کر نیچے کچن میں آ گئی، جہاں تائی امی اور ہینا پہلے ہی موجود تھیں۔ تمہیں ذرا خیال نہیں، شوہر کب کا تھکا ہارا گھر آ چکا ہے اور تم پڑی سو رہی ہو۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں شادی شدہ لڑکیوں کی۔ اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی۔ سوری تائی امی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ عادتیں بدلو اپنی، اگر اتنی ہی نیند آتی ہے تو وقت پر سویا کرو۔ سویا کیا بات ہوئی؟ شوہر کا کچھ خیال نہیں کہ چائے ناشتے کا پوچھیں؟ وہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہیں، اسے جھاڑتی باہر نکل گئی۔ ہاں، وقت پر سو جاؤ تو اپنے لاڈلے کو کہیں بھیج دیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد غصے سے بڑبڑائی، ہینا کی موجودگی کو یکسر بھلا چکی تھی۔ اس کی بات پر ہینا کا قہقہ کچن میں گونجا تھا، جبکہ وہ شرم سے گڑ گئی تھی۔ تو یار بتانا تھا انہیں کہ آپ کا بیٹا جگا کر رکھتا ہے۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے بولی۔ ہینا چپ ہو جاؤ، نہیں تو یہ سارے سینڈوچ تمہارے منہ میں ٹھوس دوں گی۔ اپنی لاپرواہی پر اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا کہ کیا ضرورت تھی اتنا فضول بولنے کی، لیکن وہ تہیا کر چکی تھی کہ آج سے جلدی سوئے گی۔ ضیاء سے بچنے کے چکر میں 2 بجے کے بعد کمرے میں گھستی اور فجر کے اذان پر اٹھ جاتی تھی۔ دن میں بھی سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن یار ابھی اپنے شوہر کو کھلاؤ، ان کا موڈ کچھ بگڑا ہوا تھا۔ وہ تو شکر کرو فہد بھائی آ گئے۔ ہینا نے ڈرانا چاہا تو ایک پل کے لیے تو پریشان ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے کیا کہہ کر سر جھٹکتی ٹرالی میں سامان لگانے لگی۔ چھوڑو، اب میرا کام یہی رہ گیا ہے، بس ان کے موڈز دیکھوں تو کبھی ان کے ماں کے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اپنے شوہر کے موڈ سے دیکھا کرو ورنہ نقصان میں رہو گے، اس نے مانے خیزی سے اسے چھیڑا۔ تم تو جیسے بڑی معصوم ہونا جو راہم بھائی کے اشاروں پر چلو، اسے گھور کر بولی۔ پاگل لڑکی، اس کے کندھے پر چپت لگاتی جائے نکالنے لگی۔ وہ برا سا منہ بنا کر ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سلام کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور لوازمات ٹیبل پر رکھنے لگی۔ بھابھی، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فہد نے مربتاً کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو ناکا زبردستی تھوڑی ہے، راہم نے سینڈوچ کی پلیٹ لیتے ہوئے کہا۔ منہل نے فہد کو بھی دی۔ اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیری تو نہ نکل جائے کھا کھا کر، سینڈوچ سے انصاف کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جبکہ ضیاء خاموش بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، چائے دو مجھے بس، اس نے سینڈوچ دینے چاہے مگر ناگواری سے منع کر دیا۔
अब इसे वाकई इसके मूड की खराबी का अंदाजा हुआ था, क्योंकि फाइट हाइटिंग शुरू कर दी। क्या राहम ने हैरत से उसे खाली पेट चाय पीते देखा। इसने मीटिंग की वजह से लंच भी नहीं किया था। मनाहिद ने खामोशी से चाय सर्व की और बाहर निकल गई। यार तुम मेरा काम कर दियो बस, बाद में से याद दहानी कराई। हाँ आकर बात करूँगा। चाय अलग में डेल था, कुछ बेजार सा हो रहा था। फिर वो काफ़ी देर तक बातों में लगे रहे। बाहर 9 बजे के करीब जाने के लिए उठा तो वो भी कमरे में चला गया। आज रात 4 बजे की इसकी दुबई की फ्लाइट थी। क्या हुआ जियान कहाँ है? सब टेबल पर मौजूद थे। उसकी गैर मौजूदगी पर ताई अम्मी ने पूछा। जी मैं बुला कर लाती हूँ। वो खुद चली आई। एक बार दुआ को बेच चुकी थी मगर जवाब न आया था। रूम में आई तो वो लैपटॉप गोद में रखे हुए पूछ सिराने से टेका एक काम में मसरूफ था। खाना खा लिया? दरवाजे पर ही खड़ी बोली। नहीं खा रहा अभी। स्क्रीन पर नजर जमाए स्मार्ट लहजे में कहा। तो कब खाएंगे? उसने वॉल क्लॉक को देखते हुए कहा जो 11 बजा रही थी। तुमसे पूछ कर खाऊंगा। अब या इसके लिए पैसा करो, अलार्म सेट कर दो ताकि जब बजे मैं ठूस लूँ रोबोट होना। वो एकदम ही फट पड़ा, जबकि वो चुप रह गई। जानती थी ये तंज क्यों किया गया है। फिर खामोशी से वापस मुड़ गई। क्या हुआ नहीं आया? स्वामी बेगम ने इससे पूछा जो अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। बाद में खाएंगे कह रही है, सर झुकाकर कहती प्लेट में चमचा चलाने लगी। ऐसा भी क्या करती है? मैंने अलार्म भी तो सेट करती हूँ, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? खुद से मुखातिब होती सबके खाने के बर्तन समेटने लगी। मनाहिल तुम तो खा लो बेटा। उसे ऐसे ही उठते देख स्वामी बेगम बोली। शाम में सैंडविच वगैरह खा लेते, इतनी भूख नहीं है। इन्हें मुस्कुराकर कहती राहम को पानी देने लगी। ये तुम दोनों में अभी भी डाइट पर हो गया? इसने लंच भी नहीं किया था और इसकी तो 4 बजे की फ्लाइट है। दुबई की पैकिंग कर ली? उसे बताते हुए उठा तो इसने हैरत से राहम को देखा। ज़ियान ने तो इसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। जी जा रही हूँ बस। उसके कहने पर वह सर हिलाकर ऊपर चला गया, जबकि वो परेशानी से लब काटने लगी। जल्दी जल्दी सारा काम समेटवा कर कमरे में आई तो वह चेहरे पर बाजू रख के लेटा था। समझ न आया कैसे बात करे। आपकी फ्लाइट है, पैकिंग कर दूँ? कुछ झिझक कर पूछा। वह नोज बाजू रख के लेटा रहा। वह मुसलसल अपनी उंगलियां चटका रही थी। सो रहे हैं? थोड़ा करीब आए। दिमाग ना खराब करो मेरा और 3 बजे का अलार्म सेट करके मेरे बराबर में रख दो। करवट बदलते हुए तपे हुए अंदाज में बोला। अच्छा खाना तो खा ले। राम भाई ने बताया आपने लंच भी नहीं किया था। बेड के किनारे पर बैठ गए। ये ड्रामा करके किस पर एहसान कर रही हो? उसे से कहता उसके करीब आया। ताई अम्मी परेशान हो रही थी आपकी वजह से। उसने थूक निकल कर कहा तो ध्यान दांत पीस था। अलमारी की तरफ बढ़ गया। लाई देख क्या पैक करना है। शर्ट्स निकालता देख फिर उसके पास आई। नहीं शुक्रिया, मामा यहाँ नहीं है, लिहाजा तुम्हें भी इस ड्यूटी पर बर्दारी की ज़रूरत नहीं। गुस्से से शर्ट्स बेड पर फेंककर वह दोबारा अलमारी की तरफ मुड़ा। देखिए आप खामखा लड़ाई करिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपके सारे काम भी टाइम पर करती हूँ। उसे इधर से उधर होते देख हल्की आवाज़ में बोली। हाँ किस तरह करती हो जानता हूँ, हर चीज़ मेरे मुंह पर मार देती हो। मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ नहीं सकती, रोबोट हो ना मैं। गुस्से से उसके करीब आया जो अलमारी से जा लगी। अच्छा सॉरी कहा ना। लब काटती हल्के से मिनमनाई। लग तो नहीं रहा कि शर्मिंदा हो। गौर से उसे देखने लगा। देखिए इतना टाइम हो गया आपने पैकिंग भी नहीं की और कुछ बनवाना है तो बता दें, मैं बना दूंगी। सूरज जो अंदाज में बोली, क्योंकि वो जानती थी ये शख्स जिद का बहुत पक्का है। ठीक है पहले पैकिंग करवाओ। उस पर झुकने लगा। वह जल्दी से साइड से निकली और बैग निकाल कर इसका सामान रखने लगी। वह बेड पर लेट कर उसका जायजा लेने लगा। कितने सूट रखूं? उसने मुड़कर पूछा। 15 दिन कटवरा रख दो इसी हिसाब से। उसका दुपट्टा उंगली में लपेटते बोला। चौड़े उसने दुपट्टा छुड़वाना चाहा तो चैलेंजिंग अंदाज में उसे देखता। पूरा दुपट्टा अपने हाथ में लपेट किया। उसने दांत पीस कर अपने छिछोरे शौहर को देखा जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। गाल गुलाबी होने लगे। रुख मोड़कर अपना काम करने लगी। इस वक्त बहस में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। जल्दी जल्दी उसकी पैकिंग करी मगर फिर भी 1:30 बज गया था। खाना लाऊं? वो फाइल में घूमता जब वो बैग साइड में रख कर बोली। हाँ ले आओ। फाइल बंद करके सर तकिए पर रख गया। इसे तो छोड़े आप। झिंझला कर इसके नीचे दबा दुपट्टा खींचा जो बगैर किसी पर उसे पेश कर छोड़ दिया था। वो उड़कर बाहर निकल गई। इसे पिछले 2-3 दिन से गुस्सा चढ़ा था। जिस तरह वो इसकी नज़रों से दूर होने लगी रहती थी, उसे तब चढ़ने लगी थी जिसका इजहार वो आज कर गया। मगर इसकी मासूमियत पर पिघल भी गया जो इसकी आवाज़ पर डर भी जाती थी। इस वक्त सर में शदीद दर्द हो रहा था। दिल चाह रहा था बस लंबी तान का सो जाए। चले खाना खाएं। टेबल पर ट्रे ला कर रखी तो वह भी उठकर आ गया। साथ तो मेरा आका, तुम जानती हो मैं अकेले नहीं खाता। उसे अलमारी की तरफ जाते देख ने हुक्म दिया। मैं खा चुकी हूँ। उसने बगैर मुड़े कहा, वरना भूख तो बहुत जोर की लग रही थी। फिर भी आओ, अपने मखसूस लहजे में कहा तो वह गुस्से से उसके बराबर में आकर बैठ गई। अब के अपने हाथों से खिलाऊं? खुद को देख तो आकर चिढ़कर बोली।
आइडिया बुरा नहीं, वैसे मुस्कुरा कर कहता खाना खाने लगा। क्या वह खा क्यों नहीं रही, उसे ऐसे ही बैठा देख पूछा। स्पून नहीं है, उसने मुंह बनाकर कहा। लो मुंह खोला। पुलाव भरकर अपना स्पून आगे किया। नहीं खा ले, मैं ले आती हूँ। उसने झिझक कर मना करना चाहा मगर जैन उसके मुंह में दे चुका था। फिर एक चमचा अपने और फिर एक उसके मुंह में देता रहा और वो हैरत से देख रही थी। बस पेट भर गया मेरा। नजर नीचे करके आहिस्ता से बोली। तो उसने ट्राइफल का बाल उठा लिया। ये कौन खाएगा, उसकी तरफ चमचा बढ़ाया। नहीं आप खाए, मैं नहीं खा सकती। मैं उठने लगी तो जैन ने वापस बिठाया। एक स्पून तो लेना पड़ेगा। उसने बेबसी से उसे देखा तो एक चमचा लेकर उठ गई। कि पहले चमचे में मिर्ची कहाँ से आ गई थी। बाल वापस रखते हुए उसे छेड़ा तो सबकर उसे देखते कमरा से पहनने लगी। उसकी रेडी होने तक इसकी चीज़ें सेट करती रही। अब मुझे सख्त नींद आ रही थी। बेटी टाई बांधो, चलो जल्दी। टाई गले में लटकाए अपनी पिए को टेक्स्ट कर रहा था। मुझे नहीं आती बांधनी, उसने झट इनकार किया। कुछ आता भी है या नहीं, उसे घूर कर मोबाइल बेड पर डाला और मिरर में देखकर टाई बांधने लगा। वह नींद भरी आंखें लिए बैठी थी। ये तुम्हें इतनी नींद की बात है, जब मैं ऑफिस से आया था तुम तब भी सो रही थी। उसकी खुमार आलूद आंखों में अपनी सी आंखें गाड़ते हुए बोला। इंसान हूं मैं और रात के 3 बजे सोने का ही वक्त होता है। उसे मोबाइल वगैरह उठाते थे गुस्से से बोली। मगर अब पूरी रात जागने की आदत डालो। उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर इस पर चुप किया। इस बार इसके लम्स में शिद्दत थी जिसे मुनाहिल ने बखूबी महसूस किया था। ख्याल रखना अपना, और वापस आऊँ तो सोफे पर सोती नजर ना आओ। आहिस्ते से उसके कान में सरगोशी करता अपने लम्स उसके पास छोड़ गया था। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करती बेड पर बैठ गई थी। हाथ खुद ब खुद लबों तक पहुंचे तो अपनी कैफे से घबराती सुर्ख पड़ता चेहरा तकिए में छुपा गई, जिसमें भी जान है की खुशबू आ रही थी। आंखें खोल कर तकिए देखा जो जान गई था, फिर दोबारा आंखें बंद करती नींद की वादियों में उतर गई थी। मोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोनों इस वक्त शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। हाँ बोलो। मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा। पिछले एक हफ्ते से काफी बेचैन सा था। मनाहिल ने उसके मैसेजेस सीन करके उसे ब्लॉक कर दिया था। इस तरह मोबाइल में घुसे रहोगे तो कैसे करूँगी, रूठ कर बोली तो मोहित ने भी मोबाइल टेबल पर रख दिया। अच्छा बोलो आप। उसे गौर से देखने लगा। पर्पल टॉप और जीन्स में बहुत प्यारी लग रही थी। मोहित, क्या तुम किसी किसी और को पसंद करते हो? दिल पर पत्थर रखकर उसकी आंखों में देखकर पूछा। वो एक पल के लिए सुन हो गया, फिर फौरन नजर चौंका गया। नहीं, क्यों? दिल में उठती टेसों को नजरअंदाज करके आम से लहजे में कहता अपनी प्लेट में सॉस डालने लगा। तो फिर मुझे इग्नोर क्यों करते हो तुम? बहुत कर्ब से कहा था। मोहित को इसकी हालत पर तरस आने लगा। वैसे क्यों दुख दे रहा था? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? हल्की सी स्माइल उसे पास की। मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। नजरें टेबल पर मरकूज करके अजीब से लहजे में बोली। तब मोहित ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? हैरानगी से बोला। मुझे तुम्हारी हमसफर बनना है मोहित। आंखों में नमी जमा होने लगी थी, जबकि वो गंग रह गया था। उसे इससे इतने वाज़ेह इज़हार की तवक्को न थी। जबकि इसकी खामोशी पर रामीन की आंखों से लड़ियों की सूरत में आंसू गिरने लगे। रामीन, तुम प्लीज खुद को संभालो। उसकी हालत देखकर फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके लम्स में उम्मीद सी थी। रामीन उसे गौर से देखने लगी। मैं मामा से बात करूंगा, मुझे कुछ टाइम दो, उसने सपाट लहजे में कहा। जबकि रामीन खिल उठी थी। उसे यकीन न आया कि वो शख्स इसका भी हो सकता है। मुस्कुराते हुए तकती चली गई, जबकि मोहित कहीं और ही गुम था। तुम मेरी न हो सकी मगर हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हें देखकर मेरे दिल में मौजूद तुम्हारे नाम का फूल जिंदा तो रहेगा। तसव्वुर में अपने महबूब से हम कलाम होता रामीन को मुस्कुरा कर देखने लगा। घर आए तो अब्दाल और ईशा आए हुए थे। ज़ियान को गए 8 दिन हो चुके थे, जिसका फ़ायदा उठाता अब्दाल हैदर पहले से आ गया था। वरना ज़ियान की मौजूदगी में से यहाँ आने की यह हिम्मत न थी। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। रामीन ने अब्दाल को देखकर छेड़ा। तुम बताओ, कहाँ गायब थी? मेज़बानी का हुनर नहीं आता तुम्हें? अब्दाल ने उसे घूरा तो खिलखिलाकर हंस दिया, जिसका मूड बहुत खुशगवार था। ज़ियान कॉल करता है यहाँ? ईशा ने मुनाहिल को ट्रॉली लाते देख माइका बेगम से पूछा। नहीं बेटा, जब गया था तभी फोन किया था बस, उन्होंने कुछ चुप होकर कहा। मुझे तो करता रहता है, उसने मुस्कुरा कर कहा। अब्दाल की नज़रें इस परी पैकर पे थी जो नजरें झुकाए सबको सर्व कर रही थी। आप भी बैठे हमारे साथ। उसे लवाजमात रख कर जाता देख अब्दाल ने गहरी नजरों से उसका जायजा लेते कहा। उसके बाद परेशान ने नागवारी से भाई को देखा। वो एक लम्हा भी उसे अपने सामने रखने के कायल न थी। मुनाहिल बगैर जवाब दिए वहाँ से निकलती अपने रूम में चली आई। ज़ियान ने जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया था। इसे परवाह भी न थी, मगर अब ईशा के बाद सुनकर गुस्सा जरूर आया था। मुझे क्या, महबूबा है उनकी, दिन रात उसके साथ लगे रहे। गुस्से से बड़बड़ाती मोबाइल चेक करने लगी, जब भी कमरे में ईशा चली आई। जारी है।
تو ویورس کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔